Hello everyone. After completing chapter 1, now we will shift on chapter 2 and that is animal nutrition. So here is a part 1 of that video. So we have to learn in this video. So in this video we have to learn animal nutrition. So what does it include? So it includes nutrition requirement, then mode of intake of food and its utilization in the body. So first of all we have to know that what is nutrition and what is the nutritional requirement. So nutrition is a process by which we can get energy, or as you can say it is a process of eating it, taking nourishment कि भाई फूड को लेने की और उसको ईट करने की प्रोसेस, दैट इज न्यूट्रिशन. Now in the image there is so many types of source and so many foods are there. From this food you can get energy or else you can get nutrition. Now food includes all the eatables that can be utilized by the body for nourishment. कि ये जितने भी फूड है उस फूड के अंदर सारे ऐसी चीज़ें होती है जो आपकी बॉडी की नरिशमेंट के लिए, आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है. डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट के अंदर डिफरेंट क्वालिटी होती है जिनके थ्रू आपकी बॉडी क्या कर सकती है, इजीली सस्टेन कर सकती है. सो mode of intake of food. So there are two types of plant are there, or else you can say two types of organisms are there, that is autotrophic and heterotrophic, that you already learned in chapter number 1. So autotrophic, that means a type of animals or else a type of organism that can make their own food, so they are autotrophs. And heterotroph, that means they have to depend on someone. Here I mentioned two image. The first one of a plant image, that is autotrophic because plant do photosynthesis and make their food, and the second one is heterotrophic, that means the all animals have to depend on each other for their food requirement. Done. So the two mode of nutrition intake is there, that is autotrophic and heterotrophic. Now if we are talking about heterotrophs, then already there are some subtypes, that is parasitic, saprophytic, insectivorous and symbiotic. As I told you in chapter number 1, there is here is an image of that. Some parasites are there which is shown in a figure, and some saprophytes are also shown in the figure. This image is of a Indian pipe which is a saprophyte, and at the upper side some parasites are there like earthworm and so many things. Now we will talk about human nutrition. So human nutrition start with ingestion. That means that means to take something inside your body. So taking of food is known as ingestion. So we are starting with the human nutrition, and the first step of that is ingestion. So ingestion is a process of intake of food. कि ingestion कोई भी फूड को इनटेक करने की प्रोसेस है. इन दिस प्रोसेस द फूड इज एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट. कि इसमें क्या होगा कि एनवायरमेंट में से आपकी बॉडी क्या करेगी, फूड को कंज्यूम करेगी. द फूड एक्वायर्ड इज मेड अवेलेबल टू द बॉडी फॉर डाइजेशन थ्रू द बकल कैविटी. कि क्या होगा कि भाई आपकी बकल कैविटी के थ्रू फूड क्या होगा, बॉडी के अंदर जाएगा और फिर उस फूड में से अवेलेबल रिक्वायरमेंट्स जितनी भी है वो आपकी बॉडी क्या कर लेगी, उसमें से यूज कर लेगी. नाउ आफ्टर इनटेक there are the digestion and absorption portion which is started from your mouth. So the process of breakdown of complex food components into a simple substance is called digestion. मतलब कि आपने जितने भी complex चीजें eat की है, the complex things will start break down in a simple form, and that one is known as digestion. Digestion means to break down the complex food into a simpler substance. Now the absorption of this simpler food component is called absorption, and after getting simplified, all the food molecules are absorbed in the body, and that absorbent process is known as absorption. Now the process of digestion are in order in your body. That means कि ये डाइजेशन की प्रोसेस की भी एक सिस्टम है कि भाई ये वन बाय वन एक एक स्टेप से जाके फिर दूसरे ऑर्गन्स के अंदर जाता है. सो डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ विथ ग्राइंडिंग ऑफ फूड. For example, it's a physical breakdown. If we are talking about the digestion system, so it will start from our mouth. That means our teeth will help in a
digestion process, for the chewing process, and that one is a physical breakdown. Now, the sugar is formed from starch present in the food by the action of salivary amylase present in a saliva. Now, how the food will start breakdowning? So, food have sugar in them, or food have starch molecules at them and sugar molecules are there. So, starch molecules will break down in a sugar molecule, and then sugar molecules are break down in a form of glucose. So, the conversion from starch to glucose is done by salivary amylase, which is present in your salivary gland, which is present in your mouth. Now, if we are talking about mouth, then we have to talk about mouth and buccal cavity. So, what is buccal cavity? कि हमारे मुंह के अंदर की ये जो सारी जगह है जिसके अंदर हमारे टीथ प्लेस्ड हुए, दैट इज बकल कैविटी. सो फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी थ्रू द माउथ. कि फूड क्या होगा, माउथ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाएगा. देन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. एज आई टोल्ड यू कि फूड को बॉडी के अंदर लेने की प्रोसेस इंजेशन के नाम से जानी जाती है. वी चू द फूड विद द teeth and break it down mechanically into a small pieces. So with the help of teeth, we'll eat the food which we intake, and that food will be broken down into a small pieces. Now each tooth is rooted in a separate socket in a gums. कि अब क्या होगा कि ये जितने भी tooths है वो सारे हमारे माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर एक पर्टिकुलर सॉकेट में, दैट मीन्स पर्टिकुलर जगह पे फिट हुए. Our teeth vary in appearance and performs different function. Now all our teeth is not same and their appearance is not same, and they are looking different, and at the same way their functions are also different. Now accordingly they given different name, और उनकी functions के according और उनकी appearance के according उनको अलग अलग नाम दिए गए. Now here is the arrangement of that teeth. Here you can see your jaw image, and that is you can say arrangement and the different types of teeth. So this one is your lower jaw. Lower jaw मतलब आपका ये जो नीचे वाला जो जबड़ा होता है ना, वो सिर्फ एक साइड की इमेज दी है. This contains 16 teeth in your lower jaw, and at the same way the same arrangement in a upper jaw. That means upper jaw have 16 teeth and a lower jaw have 16 teeth. So 16 plus 16, there are total 32 teeth are present. So now, which teeth are present in the 16th one? So the first 4 teeth, which you can see in anybody's mouth at the time of opening of mouth, so that are incisors. यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एरोज मेंशन किए हुए, और ये सेम इमेज आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी होगी. जैसे ही आप चैप्टर 2 खोलोगे तो चैप्टर 2 खुलते ही तीसरे पेज पे आपको ये इमेज दिख जाएगी. सो ये जो फर्स्ट 4 टीथ होते हैं, दे आर incisors. That means incisors are 4 in number. After incisors, one canines are there at each side. कि incisor की दोनों साइड पे एक एक canine teeth होते हैं. Then canine के बाद दोनों साइड पे, canine की दोनों साइड पे 2 teeth होता है, that is a premolar. And after premolar there is a 3 teeth at the both side, and that 6 teeth is known as molar teeth. Done. So 4 incisors are there, 2 canines are there, 4 premolars are there, and 6 molars are there. But this one is in a one jaw. अगर आपको टोटल पूछे तो टोटल कितने इंसिजर है, तो 4 in a lower jaw, 4 in a upper jaw. That means 8 incisors are there. Canines पूछ ले तो 2 in a lower jaw, 2 in a upper jaw. That means 4 canines are there. Premolar पूछ ले तो 4 plus 4 8, and molar पूछ ले तो 6 plus 6 12 molars are there. So अब प्लस करोगे आप सारी चीजों का, it will a 32. That's why we will write that human have 32 teeth in a mouth. Now after completing the digestion in food, the digestion in mouth, the food then pass through the oesophagus by the peristaltic movement in oesophagus. Now oesophagus is what? Oesophagus is nothing else but a food pipe. आपकी ये जो फूड पाइप है उसका ही एक नाम है ओइसोफेगस. आज तक आप उसको फूड पाइप बोलते थे, बट नाउ यू आर एल्डर चिल्ड्रन, सो नाउ यू हैव टू टेल इट ओइसोफेगस. तो अब क्या होगा कि आपने जितना भी फूड चो किया है उस वो फूड को आपको क्या करना है, आप गले से उसको नीचे उतारोगे. सो दैट फूड विल पास इनटू अ
Oesophagus. So now, what is a movement in oesophagus? So oesophagus have a peristaltic movement. So that movement is like open close मतलब shrink and swell. तो ये क्या हो जाएगा कि कभी ऐसे बड़ी होगी, कभी श्रिंक हो जाएगी, कभी फूलेगी, कभी वापस से श्रिंक हो जाएगी. तो ये मूवमेंट की वजह से क्या होगा, फूड इजीली नीचे पहुंच जाएगा. नाउ the food is then reach the stomach where the protein are digested by the action of dilute hydrochloric acid. So from mouth it will come in a oesophagus, and from that oesophagus it will come in a stomach. So now stomach have proteins, stomach have some enzymes and acids are there which is digest protein in a फूड. कि स्टमक के अंदर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होंगे, म्यूकस प्रेजेंट होगी. इनकी वजह से क्या होगा कि जितने भी प्रोटीन्स है उनका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से क्या होगा कि एसिड्स अंदर प्रेजेंट है तो वो आपके स्टमक की एसिडिटी, स्टमक का पीएच क्या करके रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे. देन नाउ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. कि भाई स्टमक में से वो सारी चीजें कहाँ पे जाएगी, इट विल मूव इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको इमेज ऐड करके दी है, सो आप लोग को पता चले कि कौन से ऑर्गन्स क्या होते हैं. सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई देम एट द टाइम व्हेन आई आस्क दिस इन एग्जाम. सो नाउ व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हाउ इट डाइजेस्ट द फूड. सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स. कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, तो ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट उनका कंप्लीटली डाइजेशन हो जाएगा. डाइजेशन विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम माउथ ऑल्सो, स्टमक ऑल्सो, बट एट दिस पॉइंट सम थिंग्स कैन बी रिमेनिंग. बट एट द टाइम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन nothing can be remaining. All the things are complete digested in a simpler form. Now if we are talking about small intestine, then we have to use some juices, and that is bile juice. After that so many juices are come, but first we learn about bile juice, that what is bile juice. So bile juice from the gallbladder acts on the food coming from the stomach to convert its acidic nature into a basing along with breaking fat globules present in the food. अब बाइल जूस क्या है एंड हाउ इट वर्क्स. तो सबसे पहले कि बाइल जूस होता कहाँ पे, तो बाइल जूस गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होके हुए रहता है. अब ये किस तरीके से वर्क करेगा, तो बाइल जूस क्या काम करता है कि जितना भी फूड आता है दैट कमिंग फ्रॉम द स्टमक टू कन्वर्ट इट्स एसिडिक नेचर इनटू अ बेसिक विथ फैट ग्लोब्यूल्स. कि क्या होगा, स्टमक के अंदर से जितना भी फूड आया है तो स्टमक हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनसाइड देम. So because of hydrochloric acid, food may be converted in a acidic form. So that acidic food will convert in a basic form by bile juice. Now, how it be converted from acid to base? So क्या होगा कि उनके food के अंदर जितने भी fat molecules होंगे, that fat molecules will break down and it will convert in a basic form. Then यहाँ पे आपको जो image दी है वो आपके liver की image है कि liver में से bile juice secrete होता है. और ये जो सिक्रीट हुआ बाइल जूस है वो कहाँ पे स्टोर होगा, गाल ब्लैडर करके एक ग्लैंड है जो यहाँ पे ग्रीन कलर की दिखाई हुई है. तो ये ग्रीन कलर की ग्लैंड के अंदर बाइल जूस क्या हो जाएगा, स्टोर होके रह जाएगा. देन सो बाइल जूस हो गया. उसके बाद हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की. सो देन द पैनक्रियाटिक एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द फूड. कि बाइल जूस पढ़ लिया, उसके बाद पैनक्रियाटिक एंजाइम्स वर्क में आएंगे. अब सिक्रीट कहाँ से होंगे, पैनक्रियाटिक जूस में से सिक्रीट होंगे. अब ये क्या काम करेंगे, ये पैनक्रियाटिक जूस के अंदर दो एंजाइम्स अलग अलग होता है, एंड दैट इज ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. कि ये दोनों एंजाइम क्या करेंगे कि फूड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे. देन ये जो आपको येलो कलर का ऑर्गन दिख रहा है दैट वन इज अ पैनक्रियाज. और पैनक्रियाज के थ्रू जो भी जूस सिक्रीट होगा दैट वन इज पैनक्रियाटिक जूस, और एल्स यू कैन से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स. देन नाउ एंजाइम कौन से सिक्रीट होगी, एक बार अगेन याद कर लो, दैट इज ट्रिप्सिन एंड लाइपेज.
Now, the enzymes in the intestinal juice secreted by the intestinal convert protein into amino acid, complex carbohydrate into glucose and fat into fatty acid and glycerol. कि अब क्या होगा कि ये क्या काम करेंगे, ये जितने भी आपने एंजाइम्स और जूसेस पढ़े इंटेस्टिनल के, वो क्या काम करेंगे. गैल ब्लेडर थी जिसका बाइल जूस था, और अभी पेनक्रिएटिक जूस. तो ये क्या काम करेंगे, जितने भी प्रोटीन्स हैं इट विल कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड. ये कन्वर्जेशन थी. प्रोटीन टूटेंगे अमीनो एसिड्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर एंड फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के अंदर. अब ये सारी चीजें टूट गई. अब टूटने के बाद क्या होगा, द डाइजेस्टेड फूड नाउ प्रेजेंट इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्ब बाय विलाई. कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो गई. अब एब्जॉर्ब हो जाने के बाद ये चीज़ों का क्या होगा, तो ये चीज़ें एब्जॉर्ब कहाँ पे होगी, किसके थ्रू होगी, और किस तरीके से एनर्जी जनरेट होगी. दैट वन इज अ मेन क्वेश्चन. सो स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ विलाई प्रेजेंट ऑन them. So what is villi? So you can see the red structures in them. So red villi is a finger-like projection which is present inside the small intestine. अब ये villi क्या करेगी कि ये छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की वॉल होगी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. अब ये क्या होगा कि जितने भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, दैट फूड एंड दैट एनर्जी इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय विलाई. और ये विलाई सीधी ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होती है. सो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाई में आया और विलाई से ये सारी चीज़ें डायरेक्ट कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल्स के अंदर चली जाएगी. और ब्लड वेसल्स में चली गई तो वहाँ से फिर वो फूड आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा. Now, after completing digestion process and absorption process, that is already we complete. Again, I am repeating. The first process is ingestion, then digestion. Now we will shift on assimilation. That what is assimilation? So the process of supplying all the absorbed material to the different part of the body for various maintenance of the activity to cell. कि अब assimilation क्या है, तो assimilation means the process of supplying all the absorbed material. कि आपकी बॉडी ने फूड को तोड़ के फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके जितने भी मटेरियल्स को, जितने भी मिनरल्स को अब्जॉर्ब किया है. कहाँ से अब्जॉर्ब किया, विलाई के थ्रू. और विलाई किसके साथ कनेक्टेड थी, ब्लड वेसल्स के साथ. तो इनके थ्रू जितना भी मटेरियल एब्जॉर्ब्ड हुआ है वो एब्जॉर्ब्ड हुए मटेरियल को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम, अलग अलग पोर्शंस तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज असिमिलेशन. समझ में आया कि जितना भी एब्जॉर्ब्ड हुआ चीज़ है उन चीज़ को पूरे बॉडी में पहुंचाना, दैट मीन्स असिमिलेशन. अब क्या होगा कि फॉर दिस थिंग्स योर बॉडी can work easily and maintain various activity which it has to do. Now, how assimilation works? So the villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it's utilized for optimizing energy, building new tissues and repair old tissues. So as I explained you, क्या होगा, villi is connected with blood vessels. So the absorbed food from villi is directly go in a blood vessels or else blood stream, and that blood stream will move in your full body, and your full body get nutrient, and with that nutrients and with that energy it can use in a various type, like building in a new tissue, repair any organ. At this way they can easily work. यहाँ पे मैंने आपको इमेज के साथ भी बताया कि विलाई किस तरीके से ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होती है. नाउ अब बात कर ली हमने सारी एब्जॉर्ब्ड हुई चीज़ों की कि इस तरीके से एब्जॉर्ब हुआ, इस तरीके से वर्क हुआ. बट व्हाट अबाउट दैट सब्सटेंस विच इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय योर बॉडी एंड विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय योर बॉडी. सो द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलाई एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द मटेरियल. कि अब सारी ऐसी चीज़ें जो डाइजेस्ट नहीं हुई है और एब्जॉर्ब नहीं हुई है उनका क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन से सीधा कहाँ चली जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चली जाएगी. अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी विलाई प्रेजेंट होगी, बट
कम अमाउंट में. अगर आपको विलाई का लोकेशन पूछा हो देन यू हैव टू कंपल्सरी राइट इनसाइड द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. बट ये तो नॉर्मल वर्क है कि विलाई दूसरी जगह पे भी कहीं पे प्रेजेंट होगी. तो अब क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड आया है उसमें से क्या हो जाएगा कि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है कि भाई निकल सकता है जहाँ से वाटर, वहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा. और बाकी का सारा वाटर एब्जॉर्ब हो गया और जितना भी वेस्ट बचा है वो वेस्ट आगे की इजेशन के प्रोसेस में चला जाएगा. सो ये हो गई हमारी थर्ड प्रोसेस भी कंप्लीट. नाउ वी विल शिफ्ट ऑन अ फोर्थ एंड अ लास्ट प्रोसेस एंड दैट वन इज इजेशन. सो द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया अनस. कि अब क्या होगा कि सारी प्रोसेस हो जाने के बाद जो भी अनएब्जॉर्ब्ड चीज़ें हैं और एल्स यू कैन से अनडाइजेस्टेड मटेरियल कि जो आपकी बॉडी पे अभी कहीं पे भी यूजफुल नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि वो वेस्ट है आपकी बॉडी का. ये चीज़ें क्या हो जाएगी आपकी बॉडी में से रिमूव हो जाएगी. एंड दिस रिमूवल इज डन बाय अनस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन. डन. सो यहाँ पे एक मैंने पूरा रिव्यू डायग्राम दिया है पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम का कि फूड कहाँ से इनटेक हुआ, लिवर में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट विल गेट इजेक्ट out. Then so I hope you all get it and clear your doubts. Thank you everyone. Have a good day.